Very good morning, dear students. Very good morning, dear students. Today we will start our topic 3.1, that is the Salt March and the Civil Disobedience Movement. Now, we are starting from Salt March. So, what happens? Gandhiji has chosen salt as a powerful symbol that can unite the complete nation, because the poor person also uses salt and the rich person also uses salt. So this is the main food item or essential food item. So Gandhiji used this. Now on 31st January, what he did, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. And in these 11 demands, some demands were of general interest, like some demands were in the context of from the rich to the poor, and other demands were of different classes, like some were related to the industrialist and some were related to the peasants. And what he states in that, he gave an ultimatum to Britishers that if you will not fulfill our demands till 11th of March, then we will launch, or then Congress will launch the civil disobedience campaign. Okay. And many times this question used to come, that why salt was used. So you have to keep in mind, this was a major or essential food item used by the rich as well as poor section of the society, and this, as per Gandhiji, this was a powerful symbol that could unite the complete nation. This answer you will write. Now the another thing was that the Britishers were demanding tax on the, or we can say Britishers were imposing tax on salt, and Gandhiji was stating that, or one of the demand among the 11 demands was regarding the abolition of salt tax. And from one thing you will came to know that how cruel the Britishers were, that they have imposed not only tax on salt, but they have also imposed the British government monopoly over its production. अब आपको यहाँ पर मोनोपोली का मतलब समझना होगा. मोनोपोली का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल पावर, कहने का मतलब है जैसे अगर मैं मार्केट में बोलूँ कि एक पर्टिकुलर गुड है, वो सिर्फ मैं ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं ही सेल कर सकता हूँ. ठीक है. अब इसमें ये दिक्कत हो जाती है कि अगर वो एक एसेंशियल आइटम है, ठीक है, जैसे मान लो अभी एसेंशियल आइटम की बात कर रहे हैं, सॉल्ट है, ठीक है. अब सॉल्ट एसेंशियल आइटम है, सबको चाहिए, तो उसके जितने मैं प्राइजेस चार्ज करूँगा लोग तो खरीदेंगे, क्योंकि एसेंशियल है, वो डेली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा है. तो मैं उसका जो भी प्राइस सेट करूँगी, चाहे कितना भी हाई, तो लोग परचेज करेंगे और वो सारा प्रॉफिट मैं अर्न कर सकती हूँ. दिस इज़ नोन एज मोनोपोली. नो अदर पर्सन इज हैविंग एनी राइट टू प्रोड्यूस एंड सेल सच थिंग. तो ब्रिटिशर्स ना सिर्फ टैक्स इम्पोज कर रहे थे सॉल्ट पर, दे वर ऑल्सो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो हैविंग मोनोपोली, मतलब कोई और उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता है. सो दिस shows that how Britishers were cruel or how oppressive they were. Now, as we have studied that Mahatma Gandhi gave ultimatum of 11th March regarding the fulfillment of these demands, and stated that if they will not fulfill, Congress will launch civil disobedience campaign. Now, what happens? Mahatma Gandhi started his famous Salt March accompanied by 78 of his trusted volunteers. ये क्या करते हैं? साबरमती आश्रम से, और ये जो गुजरात का कोस्टल टाउन है डांडी तक, 240 माइल्स तक ये 78 वॉल्टियर्स के साथ में मार्च करते हैं, और 24 डेज तक ऐसा होता है. अबाउट 10 माइल्स अ डे, 10 माइल्स एक दिन में ये लोग चलते थे और फिर रुक जाते थे. और फिर जब ये रुकते थे किसी भी जगह पर, एरिया पर, तो वहाँ पर ये डिस्कस करते थे हाउ रिगार्डिंग व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वराज एंड हाउ वी कैन पीसफुली डिफाई द ब्रिटिशर्स, मतलब पीसफुली ब्रिटिशर्स को हम हटा सकते हैं हमारे रास्ते से. सच काइंड ऑफ थिंग्स दे यूज टू डिस्कस व्हेन दे यूज टू स्टे इन
different parts during the Dandi March. On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law. ये 6 अप्रैल को डांडी पहुंच जाते हैं और वहाँ प्रॉपर सेरेमनी के साथ में क्या करते हैं, वॉयलेट करते हैं कौन से लॉ को, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग लॉ को, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास ही मोनोपोली पावर था टू प्रोड्यूस दैट एंड सेल दैट. एंड salt manufacturing he used to do by boiling sea water. So here they used to violate the, or we can say they used to violate the British law. Now the next thing they have discussed is this event was the beginning of civil disobedience movement. यहाँ से शुरू हो जाता है civil disobedience इस instance से. Now they have talked about the difference, that this movement different from the, how this movement was different from the non-cooperation movement. So here pay attention, this is very important question. People are now asked not only to refuse cooperation, ना सिर्फ लोगों को रिफ्यूज़ करना था ब्रिटिशर्स को कॉपरेशन करने से, जैसे कि उन्होंने 1921 और 22 में किया था, बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल रूल्स. लेकिन अब उनको क्या करना था, कॉलोनियल यानी ब्रिटिशर्स के रूल्स को क्या करना था, ब्रोक करना था. और ऐसा होता भी है. थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक सोल्ट लॉ. बहुत हज़ारों लोगों ने अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में सॉल्ट लॉ को ब्रोक किया, सॉल्ट बनाया. डेमोस्ट्रेशंस वर डन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, सॉल्ट फैक्ट्रीज. ठीक है, धरने प्रदर्शन हुए. और जो मूवमेंट थी वो स्प्रेड हो जाती है. फॉरेन क्लोथ्स को बाइकॉट किया गया. लिक्वर शॉप्स वर अगेन पिकेटेड. ठीक है, वहाँ पर भी उनको बंद करवाया गया. ऑल सच थिंग्स वर, एंड इफ एनी काइंड ऑफ means people used to open the liquor shops, then complete banned like situation is put on them at the liquor shop place. Then peasants refused to pay revenue. अगर peasants की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया और चौकीदारी टैक्सेस पे करने से मना कर दिया. विलेज ऑफिशियल्स रिज़ाइन कर दिया विलेजेस में ऑफिशियल्स ने. और मैनी प्लेसेस जो फॉरेस्ट पर्सन थे उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉज को वॉयलेट किया. जैसे कि आपने पढ़ा था 8th क्लास में, रिजर्व्स फॉरेस्ट वर देयर एंड द कॉमन पीपल वर नॉट अलाउड एंड ट्राइबल्स वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज देयर एनिमल्स. तो ये इस चीज़ में भी वॉयलेशंस देखा गया. वो लोगों ने वॉयलेट किए इन सारी चीज़ों को. नाउ अब ऐसे सारे सिचुएशन को देखते हुए क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन. अब गवर्नमेंट थोड़ी अफ्रेड हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट. उन्होंने क्या किया, वन बाय वन कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया. एंड दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस. अब जब कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट होने लगे तो बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट होने लगी अलग अलग जगह में. जैसे जब अब्दुल गफर खान, he was a disciple of Mahatma Gandhi, great follower of Mahatma Gandhi we can say, and also known as Frontier Gandhi, was arrested in April 1930. जब इनको अरेस्ट किया गया अप्रैल 1930 में, तो जो क्राउड, जो भीड़ जो गुस्से में थी, उन्होंने स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर पे धरने प्रदर्शन किए, डेमोस्ट्रेशंस किए. ओके, एंड और उसके बाद में क्या उनको क्या फेस करना पड़ा, पुलिस फायरिंग वगैरह फेस करना पड़ा. और इस सिचुएशन में मैनी पीपल वर किल्ड. और 1 मंथ बाद व्हेन गांधी जी हिमसेल्फ वर अरेस्टेड, और इसके 1 मंथ बाद जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट्स. ठीक है, पुलिस के अलग अलग पोस्ट जो थे उन पर अटैक कर लिया. म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर लोगों ने अटैक कर लिया. इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने लॉ कोर्ट्स, रेलवे पर अटैक कर लिया. और ऐसे सभी जगह पर अटैक कर लिया जो सिंबलाइज करती थी ब्रिटिश रूल को या ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी. और फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रेप्रेशन. और गवर्नमेंट जो था उन्होंने अब क्या किया, इसका अच्छे से जवाब दिया. ठीक है, पीसफुली सत्याग्रहीज वर अटैक्ड. पीसफुल जो सत्याग्रहीज थे उन पर भी अटैक हुए. विमेंस चिल्ड्रंस को मारा गया, दे वर बीटन, एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड. तो सोचो कितनी अजीब सिचुएशन होगी ये, है ना, कितना डिस्टर्बेंस था उस टाइम पे हमारे कंट्री में. अब क्या होता है इन सच ए सिचुएशन,
गांधी जी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब क्या होता है, गांधी जी तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कभी कि वॉयलेंस हो, ठीक है, ही वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑफ दिस। तो फिर से अब जब बहुत ज़्यादा वॉयलेंस होने लगी, मारकाट होने लगी कंट्री में, तो फिर से वो क्या कर देते हैं, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चोरी चोरा के टाइम कॉल्ड ऑफ किया, तो अभी सिविल डिसोबीडियंस को भी यहाँ पे कॉल्ड ऑफ कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और उनको और सोचते हैं किसके बारे में, एक पैक्ट, एक मतलब ट्रीटी मान लो या छोटा सा समझौता मान लो, उसके लिए राज़ी हो जाते हैं, जो इरविन उनको मतलब ऑफर करता है, विच इज़ नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। और 5 मार्च 1931 को ये साइन होता है। और इसमें क्या होता है अब इस पैक्ट में, इसमें ये होता है कि जैसे देखो, याद करो, अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑफर मिला था कब, जब साइमन कमीशन वाली सिचुएशन थी, उसको जब वो वाली सिचुएशन आई थी, लेकिन जो कांग्रेस लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, उन्होंने क्या कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था कि हमें ऑफ़र नहीं चाहिए, ना हमें डोमिनेशन स्टेटस चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है कि गांधी जी क्या करते हैं, उसको एग्री कर लेते हैं इसके लिए। और कुछ जो गवर्नमेंट क्या करती है, वो बोल देती है हम कुछ आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देंगे। अब जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में दिसंबर में 1931 में, गांधी जी बड़ी उम्मीद से, होप से वहाँ पर जाते हैं कि सब कुछ ना कुछ समझौता होगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई सॉल्यूशन, जो उनकी डिज़ायर एस्पिरेशंस थी, डिमांड्स वगैरह थी, वो कोई भी मानी नहीं जाती है, सुनी नहीं जाती है, ठीक है। और बड़े ही डिसअपॉइंट होकर वो इंडिया आते हैं। और जब वो इंडिया आते हैं, वो यहाँ देखते हैं तो यहाँ तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर क्या हो रखा है, गफ़र खान जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में हैं। और कांग्रेस जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, बिकॉज द लीडर्स आर इन जेल। एंड अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो रखा है, डेमोस्ट्रेशंस, बाइकॉट्स, मीटिंग्स वगैरह बड़ी मुश्किल से अरेंज हो पा रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, गांधी जी को ऐसी सिचुएशन देखकर फिर से जो सारी सिचुएशन का वो आइडिया लगाते हैं और फिर से लॉन्च कर देते हैं क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931। ओके, आफ्टर दैट नाउ एक बार एक दो साल बाद में क्या होता है, बाई 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। इसका जो क्या बोलते हैं, एक वो सिविल डिस ओबीडियंस जो थी, वो धीरे धीरे मतलब डाउन आ जाती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक 3.2, दैट इज़ हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करेंगे कि पार्टिसिपेंट्स ने मूवमेंट को कैसे देखा, वी विल सी इन दिस टॉपिक नाउ। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड you will see in this topic the role of landlords in civil disobedience movement, the role of poor peasants, the role of big industrialists, the role of industrial workers एंड द रोल ऑफ विमेंस। तो आपको पांचों का जो रोल है पार्टिसिपेशन का, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। एग्ज़ाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, दीज टू टॉपिक्स, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का कुछ भी पूछ लेंगे वो आपसे, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या दोनों में डिफरेंस कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक्स से, ठीक है। तो आपको इन पांचों सेक्शंस के रोल जो है अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या पर्पस से उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और क्या उनकी कंडीशंस रही, मतलब एक तरह से कंडीशन में रही जब उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट थिंग वी इज, लेट्स स्टार्ट नाउ। इफ यू टॉक अबाउट the things we will came to know in this topic are how the different social groups participated, why they joined the movement, and what were their ideals, क्या उनके आदर्श थे, and what did स्वराज meant to them, क्या उनको समझ में आता था स्वराज से। These things we will see.
Next is